there's some breaking news coming in. AICC President and Rajya Sabha Leader of Opposition Mallikarjun Kharge has responded to Rajya Sabha Chairman and Vice President Jagdeep Dhankar, stating that he won't be able to meet Vice President Dhankar as he is currently out of Delhi. He has penned a lengthy letter to VP Dhankar, who had also earlier established written correspondence with him. Meanwhile, these are the latest updates that we're tracking for all of our viewers on the broadcast. Earlier, of course, Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankar had written to AICC President and had requested him to spare time for interaction today itself at 4 p.m. at Up Rashtrapati Niwas. His letter primarily concerned the suspension of the members of Parliament and had stated that at this point of time, stated that there was deliberate disorder in the House by the way of sloganeerings, raising placards, entering the well of the House, and of course gesticulating towards the chair. He had stated that before taking the unpleasant step, all efforts and initiatives were exhausted. Meanwhile, the letter that has been penned by Mallikarjun Kharge, on the other hand, reads out that the letter penned by VP Dhankar unfortunately justifies the quote autocratic and arrogant attitude of the government towards Parliament. The letter most shockingly justifies the denigration of parliamentary practices and subversion of democracy. It further goes on to state, and I quote, that the chairman is the custodian of the House and should be at the forefront to uphold the dignity of the House, defend parliamentary privileges and protect people's right of holding its government accountable through debates, discussion and reply in Parliament. It would be distressing when history judges the presiding officers harshly for bills passed without debate and not seeking accountability from the government, unquote. Meanwhile, joining us on the broadcast is my colleague Manohar Kesari. Manohar, over to you for more details. What can you tell our viewers? देखिए, जब 146 एमपीज को राज्यसभा और लोकसभा से विंटर सेशन के दौरान सस्पेंड किया गया और उसके बाद कई ऐसे बिल थे, चाहे वो नागरिक सुरक्षा न्याय संहिता या फिर एविडेंस बिल की बात करें, तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहले ही वाइस प्रेसिडेंट और चेयरमैन राज्यसभा जगदीप धनखड़ को लेटर लिखा था और वक्त मांगा था। उसके बाद स्टरडे जगदीप धनखड़ ने उन्हें टाइम दिया, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने जवाब दिया है उस लेटर का और उन्होंने कहा है कि मैं अभी इस समय दिल्ली से बाहर हूं और नहीं मिल पाऊंगा। लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर अटैक किया जिस प्रकार से बिल पास कराया गया। कहा गया कि अपोजिशन की उपस्थिति में बिल पास होना चाहिए था, लेकिन कोई भी अपोजिशन नहीं था और साथ ही साथ उन्होंने सीधे तौर पर अटैक करते हुए कहा कि एक चेयरमैन का ये अधिकार क्षेत्र होता है कि वो जो है सदन का संरक्षण करे, प्रोटेक्शन करे, सदन की गरिमा बनाए रखे और जो प्रिविलेज राइट्स है उसका प्रोटेक्शन करे। सदन में कोई भी अपोजिशन के लिए सबसे बहस हो, चर्चा हो और जवाब ले। All right, Manohar, stay on with us because we also have Mr. Ajay Verma, Congress leader, joining us on the broadcast. Good morning, sir, and thank you for joining us on NewsX. Of course, breaking developments that we're getting in right now. AICC President Mallikarjun Kharge has penned a reply to Vice President Jagdeep Dhankar. He has, of course, stated that he will not be able to meet the latter as he is currently out of Delhi, but also he has criticized the Rajya Sabha chairman, stating that the chairman is the custodian of the House and should be at the forefront to uphold the dignity of the House, defend parliamentary privileges and protect people's rights to holding government accountable through debates. Earlier, of course, 146 MPs were suspended. So what is your very first reaction to these developments? देखिए, लोकतंत्र को शर्मसार जब किया गया देश की सरकार के द्वारा 146 अपोजिशन के समस्त सांसदों को अपने बिल पास करने के लिए, वो तो निंदनीय है। देखिए, उपराष्ट्रपति एक संवैधानिक पद होता है और उपराष्ट्रपति पद की संसार में और हिंदुस्तान में गरिमा होती है।
जगदीप धनखड़ जी ने किस तरह से जातिवादी, उसको मैं तो कह रहा हूं कि ऐसे उपराष्ट्रपति को बर्खास्त कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक जाट का अपमान हुआ है, कौम का अपमान हुआ है, कम्युनिटी का अपमान की बात तो वहां आती है जहां कुछ किया गया हो। देखिए, कल्याण बनर्जी ने मिमिक्री, उसने कहा कि मिमिक्री एक कला है और मेरे मोदी इसमें गुरु हैं। और जब देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट के अंदर संवैधानिक पद पर रहकर मिमिक्री करी, उस पर ना तो खड़गे जी के मुंह में दही, इन पर जगदीप धनखड़ जी के मुंह में दही जम जाती है। कैसे उपराष्ट्रपति है। और एक चीज और मैं आपको नॉलेज में लाना चाहता हूँ, देश के लोगों को बताना चाहता हूँ, ताकि उनकी अंधभक्ति दूर हो, जो अंधभक्ति भाजपा के IT सेल द्वारा फैलाए गए लोगों की में होती है, कि उपराष्ट्रपति अलग होता है और राज्यसभा का सभापति अलग होता है। जब वहां बैठते हैं वो राज्यसभा के सभापति के रूप में बैठते हैं। उपराष्ट्रपति का निर्वाह कर्तव्य अलग होते हैं। तो उपराष्ट्रपति की कहाँ मिमिक्री करी गई है। मिमिक्री उन्होंने वहां आपने किया। कोई आदमी अपने ऊपर अगर ले रहा है केवल पॉलिटिकल इंडेक्टर एजेंडा चलाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं का केवल बिल पास कराने के लिए, केवल अपोजिशन के लोगों को सदन से बाहर निकालने के लिए, केवल तानाशाही को बढ़ावा करने के लिए सभापति का आचरण इस तरह का था। और सभापति का तरीका और घमंड अंदाज देखिए, तो इससे तो ये लगता है कि सरकार अहंकार में चूर है, सरकार घमंड में चूर है। सरकार ने अघोषित कर्फ्यू लगा रखा है। सरकार से कोई सवाल पूछता है अडानी के ऊपर तो जवाब नहीं देंगे, किसी का मकान छीन लेंगे, सदस्यता रद्द कर देंगे। सरकार से कोई चर्चा करता है तो उसकी संसद सदस्यता रद्द कर देंगे। और सरकार और धनखड़ जी के मुंह में जब दही जम जाती है, जब इनका एक सांसद रमेश बिदूड़ी एक चुने हुए सांसद को उस लोकसभा में और राज्यसभा के उस सबसे बड़ी संसद, उसमें पंचायत में चुने हुए मंदिर में जब गाली बकता है, संसदीय भाषा इस्तेमाल करता है, किस तरह की भाषा इस्तेमाल करता है, उसके खिलाफ ना मुकदमा दर्ज होता है, ना उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। और सरकार के मुंह में जब दही जम जाती है, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री और देश के सारे जो जितने भी हैं ये लोग, कि जिस वक्त राहुल गांधी प्रताप सिंह ने पास बनाया और संसद पर अटैक हुआ, 196 कंट्रियों में भारत की बेइज्जती हुई कि कुछ भी घुस सकता है। अब देख लीजिए कितना फर्क पड़ेगा, लोग आने से बच रहे हैं हिंदुस्तान में। और लेकिन प्रताप सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई हुई तो उन संसदों के खिलाफ जो पूछ रहे थे, आवाज उठा रहे थे। तो ये दुभाषिया, ये दुहरी नीति और ये नीयत खराब जो भाजपा सरकार की और इनके जो संवैधानिक पद पे लोग बैठे हैं, चाहे वो स्पीकर लोकसभा हो या कोई भी हो, उनको तो एक जनरल, ये लोग कह रहे हैं, ये OTT प्लेटफॉर्म कह रहे हैं, ये जितने भी न्यूज चैनल्स हैं, ये तो मित्र मीडिया है बहुत सारे, तो ये तो नहीं दिखा रहे। लेकिन चलिए आपको चर्चा कर रहे हैं, अच्छी बात है और करनी भी चाहिए। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है सब। और फिर मैं दूसरी, अभी आपको आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को अपनी पार्टी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और अजय वर्मा की तरफ से मैरी क्रिसमस, शुभकामना देना चाहता हूं, मैरी क्रिसमस की बधाई आप सभी को मेरी तरफ से। और पुनः मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं कि इस देश की सोशल फैब्रिक को खत्म मत होने दीजिए। इसकी सोशल फैब्रिक का बचाना देश के उन सारे उस पर है, चौथे स्तंभ पर भी है, और आप उस चौथे स्तंभ को महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। Sir, I request you to stay on with us. Sir, I request you to stay on with us because also joining us on the broadcast is Ms. Anila Singh of the Bharatiya Janata Party. Ma'am, you've of course heard what Mr. Ajay Verma has to say. We are of course talking in context of the letter penned by AICC President Mallikarjun Kharge, where he has stated that the ruling party has, quote, weaponized the suspension of the members as a convenient tool to undermine democracy. This is something that Mr. Verma has in fact echoed while he was speaking. What would your reply be to the Congress? सबसे पहले तो आज महाराजा सूरजमल जी का बलिदानी दिवस है। उनको हम याद करें, ना केवल जाट कौम उनको याद कर रही है, परंतु उनका जो साम्राज्य था उसमें रहने वाला एक एक व्यक्ति, जिसकी पीढ़ी आज भी वहां रह रही है, हम सब उन महाराजा सूरजमल को याद करते हैं। क्योंकि अगर सबक मुगलई आक्रमणों को किसी ने सिखाया था तो वो महाराजा सूरजमल ने सिखाया था। परम आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज जयंती है, उनको हम सब याद करते हैं। आज सुशासन दिवस भी मनाते हैं और आज ईसाई समुदाय जो है वो क्रिसमस त्योहार मनाती है। उन सबको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। एंड विद दिस आई विल से द वे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
who chairs Rajya Sabha as well, has been humiliated, has been attacked by this alliance members, and the role of director was played by Mr. Rahul Gandhi is deplorable. And upon that, Mr. Kharge is writing a letter. He's trying to justify the acts instead of repenting what happened. And we know it very well that if we talk about Kalyan Banerjee, he has not corrected his actions, and again he has done the mimicry, showing that we do not care about anything. So this is their behavior. If Mr. Kharge writes a letter, it doesn't prove anything. It proves one simple thing, that you do not have any respect for this nation, for the constitutional post, to the people who want that the parliament should run smoothly. You don't have any respect for that as well. So this is the sole reason people of this country, they do not like to see what this alliance is doing, and they are digging their own grave. Ma'am, I request you to stay on with us because Mr. Ajay Verma is also still with us on the broadcast. Sir, how would you like to respond to the BJP? देखिए, अनिला जी बहुत अच्छी सोशल और लोकप्रिय भाजपा की महिला नेता भी हैं और साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। महाराजा सूरजमल जी को मेरी तरफ से और हमारी पार्टी की तरफ से भी बहुत बहुत बधाई। और वो एक जांबाज महाराज थे और जो योगदान उनका रहा वो कहीं से भुलाया नहीं जा सकता। और अनिला जी भी प्रतिनिधित्व करती हैं महाराजा सूरजमल वंश को। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था अनिला जी से कि भाजपा की प्रवक्ता होने के नाते, अनिला जी सोशल वर्कर होने के नाते नहीं, भाजपा चूंकि वो गलत पार्टी से जुड़ी हुई है, उन्हें कुछ दिन बाद हम ले आएंगे, कि राष्ट्रपति ने, उपराष्ट्रपति जी, आपने कहा कि एक संवैधानिक पद होता है, हमने माना होता है, लेकिन जब वो राज्यसभा के चेयर पर होते हैं तो उनका कर्तव्य अलग होता है और उपराष्ट्रपति के कर्तव्य अलग होते हैं। ये संविधान में लिखा है, विधाय में लिखा है, विधि में लिखा है। जब उपराष्ट्रपति ने कहा कि एक जाट समुदाय का अपमान है, तो भारत तो एक सेकुलर कंट्री है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं यहाँ एक जाति है, तो किस उपराष्ट्रपति के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए अगर वो इस तरह से कहते हैं कि एक जाट समुदाय का अपमान हुआ है। पहले तो अपमान की कोई बात ही नहीं थी, मिमिक्री एक कला है। कल्याण बनर्जी एक बड़े पुराने वकील और सांसद हैं, उन्होंने कहा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी मेरे आदर्श हैं और मिमिक्री में मेरे गुरु हैं, मैंने ये कला उन्हीं से सीखी है, क्योंकि उन्होंने देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में मिमिक्री का जो अनूठा उदाहरण पेश किया था। और तब मैं कहूं, तब उस वक्त में अगर ओबीसी का अपमान हुआ था, मैं केवल जाट का नहीं कह रहा, तब ओबीसी का अपमान हुआ था, तो उसके खिलाफ ना, तो अनिला जी मैं चाहूंगा कि दो शब्द आप भी सुशोभित करें। आप अपने मुखारबिंद से, आप योग्य प्रवक्ता हैं, पार्टी को पक्ष रखती हैं, और क्या आप बताएंगे क्या कि खड़गे साहब ने जो कहा वो क्यों गलत कहा है, और क्या आप बताएंगे कि उपराष्ट्रपति जी ने कहा कि एक जाट का अपमान हुआ है, ये क्या जायज था? अगर इसे जायज कहते हैं तो फिर तो हमारा लोकतंत्र से विश्वास खत्म हो जाएगा, संविधान से हम किताबें जो है वो लिखी हुई बेकार है। भारत का न्याय और भारत का संविधान बदलने की जरूरत पड़ेगी। तो फिर मैं चाहूंगा कि आप लोगों ने जैसे अभी बिल पास करने के लिए 146 सांसद सदन से जबरदस्ती निकाल दिए गए, तो बिना किसी सांसद के और संसद के आप बिल भी पास कर लीजिए और बता दीजिए कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष नहीं है, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, भारत एक डिक्टेटरशिप शासित के देश है और यहाँ डिक्टेटरशिप लागू हो गई है। तो ये खड़गे जी ने जो चिट्ठी लिखी है, ये बिल्कुल लोकतंत्र के मूल्यों को बचाने के लिए लिखी है। आदरणीय उपराष्ट्रपति जी को तो सारी पार्टियों को बिल्कुल एक आंख से समान देखना चाहिए, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो। ये माना उन्हें बीजेपी ने उपराष्ट्रपति चुना है, ये माना मोदी जी की मेहरबानी हुई है, ये लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, लोग कहते हैं कि संवैधानिक संस्थाएं किस तरह से काम कर रही हैं। तो उनको देखकर सभी सारी पार्टियों को, वो चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय लोकदल हो, कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो, उनको समानता का अधिकार और लोकतंत्र के मूल्यों की स्थापना करनी चाहिए। एक नया उदाहरण पेश करना चाहिए। एक नया उदाहरण पेश करके वो ये जा रहे हैं कि मेरा जाट समुदाय का अपमान कर दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि साहब ऐसे कर दिया, तो ये बड़ी गलत परिपाटी है। और मैं चाहूंगा अनिला जी अपने मुखारबिंद से इस पर प्रकाश डालें। आप योग्य पढ़ी लिखी महिला हैं, आप बहुत अच्छी पत्रक्षी हैं, इस पे भी जरा अपना पक्ष रखिए। I would like to give the last word to Ms. Anila Singh. How would you like to respond to Mr. Ajay Verma? मैं अजय जी को इतना ही बताना चाहूंगी कि अजय जी जो उन्होंने कहा कि जाट का, ओबीसी का, किसान का अपमान हुआ है, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पता है कि जाट कौम में अगर उच्च पद पर कोई पहुंचा है तो आप उंगलियों पे गिन सकते हैं। अभी किसानों के देवता
जो चौधरी चरण सिंह जी को माना जाता है, सारी जाट कौम उनको, सारे किसान उनको किसानों के देवता मानते हैं, या तो वो पहुंचे हैं या हमने देखा है जगदीप सिंह धनखड़ साहब पहुंचे हैं। तो चाहे वो ओबीसी का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो जाट कौम से आता हो, आसान नहीं होता, बहुत संघर्ष लगता है, बहुत संघर्ष लगता है। और जब वो उस पद पे पहुंचता है, वहां बैठकर उसका मजाक, उसका मखौल बनाया जाता है, ये सोचते हुए, क्योंकि चुटकुले बहुत जाटों के ऊपर बहुत चुटकुले बनते हैं, उनका भी चुटकुला बना दिया गया। कहीं तो कुछ तो सम्मान छोड़ेंगे ना। आपको व्यक्तिगत रूप से, आपको मतलब ये जो अलायंस है, व्यक्तिगत रूप से कुछ भी परेशानी हो सकती है धनखड़ साहब से, आपके अपने अपने विषय हो सकते हैं, परंतु जब वो उस चेयर पर बैठे हुए हैं, वो धनखड़ साहब बनकर नहीं, परंतु धनखड़ साहब को उस चेयर पे बिठाकर और दोनों को जोड़कर जब आप मजाक बनाएंगे, तो धनखड़ साहब कहेंगे कि मैं जिस कौम से आता हूं, मैं जिस समुदाय से आता हूं, शायद आप इसलिए मेरा मजाक बना रहे हैं। इससे पहले तो किसी भी सभापति का मजाक नहीं बनाया गया। क्यों उनका मजाक बनाया जा रहा है? क्योंकि वो जाट कौम से आते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। ये जो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि वो वीडियो बना रहे थे। ममता दीदी को जस्टिफाई करने की जगह बताना चाहिए अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को कि इस प्रकार का व्यवहार ठीक नहीं है। वैसे उनकी पार्टी आजकल मैं देख ही रही हूँ, गलत चीजों के लिए ज्यादा चर्चा में है। कभी वो राष्ट्र की सुरक्षा को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, कभी सभापति जी का मजाक बना देते हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ममता दीदी जो हैं वो किस रास्ते चल दी हैं। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.